ویلکم بیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور بتائیں آپ کو کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کا وسطی علاقہ خالی کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ سے کہا گیا ہے کہ وادی غزہ سے تمام فلسطینیوں کو جنوبی حصوں میں منتقل کر دیا جائے۔ اسرائیل کی دھمکی سے متعلق اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی دھمکی کی زد میں تقریباً 11 لاکھ فلسطینی آتے ہیں جو غزہ کی نصف آبادی ہے۔ ایسی کوئی نقل مکانی تباہ کن انسانی اثرات کے بغیر ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 4,23,000 تک جا پہنچی ہے۔ آج رات لاکھوں فلسطینیوں کے پاس سونے کی جگہ نہیں۔ غزہ میں جنم لیتے انسانی المیوں سے نمٹنے کے لیے 20 لاکھ فلسطینیوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب حماس کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اسرائیل پر حملوں کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے حماس کے فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے آغاز پر ہی اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن تباہ کر دیا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 1570 ہو گئی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد 7,200 سے بھی تجاوز کر گئی۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 2,500 سے زیادہ مکانات تباہ جبکہ 30,000 سے زیادہ مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی بربریت میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3,38,000 تک پہنچ گئی۔ 2,20,000 فلسطینی اقوام متحدہ کے اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور جبکہ 1 لاکھ فلسطینی اپنے عزیزوں اور گرجا گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ غزہ میں ہسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور دوائیں کم پڑ گئیں۔ بجلی بند ہونے سے وینٹیلیٹر چلانا چیلنج بن گیا۔ بی بی سی کی ٹیم غزہ کے ہسپتال پہنچی تو صحافیوں کو اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے اپنے ہی زخمی دوست اور اہل محلہ جا بجا نظر آئے۔ رپورٹر نے اسے دلخراش اور بے بسی کے مناظر دیکھنے کو اس خود آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ صدمے سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ سیالکوٹ واقعے کے ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں جس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے شواہد مل چکے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے کہا سیالکوٹ میں مسجد کے اندر فائرنگ کر کے 2 افراد کو شہید کیا گیا۔ جائے وقوع سے شواہد حاصل کر لیے۔ واقعے میں ملوث ملزمان پکڑ لیے ہیں جنہیں جلد عدالتوں میں پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرائم سین سے کنفرم ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ پاکستان میں ایک دہشت گرد کا حملہ ہوا جس کی منصوبہ بندی دوسرے ملک میں ہوئی۔ پاکستان کی ریاست پر حملے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان کی ایجنسیوں نے پاکستان کے اندر ہونے والے واقعے کو 24 گھنٹے میں ٹریس کر لیا۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو پوری دنیا میں بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے جنہیں بے نقاب کیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ پاکستان میں خود کو عالمی قوانین سے بالا سمجھنے والے بدماش ملک کی بدنام زمانہ ایجنسی نے ایک بزدلانہ اور غیر قانونی آپریشن کیا۔ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے منصوبے میں بریک تھرو کیا۔ جو چوہے پاکستان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں آپ تیار رہیں، ہم پوری دنیا میں آپ کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب پولیس نے کہا کہ اگلی پریس کانفرنس میں ثابت کر دیں گے کہ ان سازشوں کے پیچھے کون سا بدکار ملک ہے۔ آئی ایس آئی، ایم آئی، سی ٹی ڈی، آئی بی اور دیگر تمام ایجنسیاں ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ریاست پاکستان اپنی ایجنسیز کی مدد سے تمام دشمن عناصر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ سپریم کورٹ کا نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ چیلنج کر دیا گیا۔ نیب ترامیم فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کی گئی۔ ایڈوکیٹ فاروق اکشنائچ نے عبدالجبار کی طرف سے نیب فیصلہ چیلنج کیا۔ درخواست گزار کے مطابق سپریم کورٹ نے ہمیں سنے بغیر نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ دیا اور نیب ترامیم کے بعد احتساب عدالت نے میرے خلاف ریفرنس اینٹی کرپشن عدالت کو بھجوا دیا۔ نیب ترامیم کے خلاف درخواست میں کسی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی نشاندہی نہیں کی گئی جبکہ نیب ترامیم کے خلاف درخواست آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کرتی تھی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ نیب ترامیم کے خلاف 15 ستمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ عالمی مارکیٹس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کے دام $12 فی بیرل تک گر گئے۔ گلف مارکیٹس میں پیٹرولیم مصنوعات $88 فی بیرل پر آ گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں $84 فی بیرل کی سطح پر دستیاب ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے اوگرا ورکنگ 14 اکتوبر کو تیار ہوگا۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ 15 اکتوبر کو ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز ملٹری سے نواز دیا۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب منعقد ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں اعلیٰ سول فوجی حکام بھی شریک ہوئے۔
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नून लीग के बानी नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तैयारा नवाज शरीफ को लेकर पाकिस्तान के लिए सुबह 8:30 बजे मुत्तहिदा अरब अमारात से रवाना होगा। नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। खुसूसी परवाज में नवाज शरीफ के अलावा 152 अफराद सवार होंगे। खुसूसी तैयारे में नवाज शरीफ के हमरा नून लीग के कारकुनान और सहाफी लाहौर पहुंचेंगे। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन इक़दामात के दौरान मुकदमात का इंदराज और गिरफ्तारियों के बाद वाजबात की वसूली का सिलसिला जारी। 1 सितंबर से 8 अक्टूबर तक मजमूई तौर पर 27,381 मुकदमा दर्ज करके 13,621 अफराद को गिरफ्तार, जबकि 17.67 अरब रुपए की वसूली की गई। जबकि बिजली चोरी के मुकदमात, गिरफ्तारियों और वाजबात की अदायगी में लेस्को लाहौर सबसे आगे। लाहौर में बिजली चोरों के खिलाफ 12,778 मुकदमा दर्ज किए गए, 4,587 अफराद गिरफ्तार किया गया। लाहौर में बिजली के बिलों की मद में 4.61 अरब रुपए के वाजबात वसूल किए गए। कोटअद्दू में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 5 अफराद जाँ बाक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक ये हादसा नूरशाह तिलाई रोड पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 5 अफराद जाँ बाक हो गए। रेस्क्यू काम ने बताया कि कार सवार अफराद मुल्तान से कोट सुल्तान जिला लिया जा रहे थे कि कार बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक कार सवार की उम्रें 30 से 50 साल के दरमियान है। तमाम लाशों को DHQ अस्पताल कोटअद्दू मुंतकिल कर दिया है। चेयरमैन PTI की जेल में सिक्योरिटी और तहफ्फुज़ की दरखास्त पर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर। मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें दरखास्त गुजार की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि बुशरा बीबी की दरखास्त पहले ही 25 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। रजिस्ट्रार ऑफिस का रूल है केस 25 अक्टूबर को ही सुना जाएगा। बुशरा बीबी ने सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस सिलसिले में दायर दरखास्त में कहा गया है कि 5 अक्टूबर को समाअत हुई तो अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी किए। अदालत ने दरखास्त को 2 हफ्तों में दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा। वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने कहा है कि पाकिस्तान चीनी इक़्तिसादी राहदारी से भरपूर फायदा नहीं उठा सका। वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने एक तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान चीनी इक़्तिसादी राहदारी से भरपूर फायदा नहीं उठा सका और जिसके नतीजे में इसकी सबसे बड़ी नाकामी बरामदात में इजाफा न होना है, जो न सिर्फ बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए अदहद जरूरी है बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने में भी मदद देती है। तकरीब का इनेकाद पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर किया गया, जिसका मकसद इस पूरे मंसूबे का जायजा लेना था। फवाद हसन फवाद ने कहा कि सन 2013 से 2018 के 5 बरसों के दौरान पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे से कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा सका, जबकि 2018 के बाद से तो इस मंसूबे पर कोई काम ही नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के जिला केमाड़ी से कागजात नामजदगी को सिटी कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल गरबी में चैलेंज कर दिया गया। UC3 माड़ीपुर से जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन मोहम्मद हुसैन ने दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुर्तज़ा वहाब माड़ीपुर UC3 के ना वोटर हैं और ना ही रिहायशी। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, रिटर्निंग अफसर की जानिब से मुर्तज़ा वहाब के कागजात नामजदगी की मंजूरी गैर कानूनी है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक उम्मीदवार का वार्ड या कौंसिल में रजिस्टर्ड वोट होना जरूरी है। तहरीक इंसाफ ने भी मुर्तज़ा वहाब के जिला केमाड़ी से कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। तहरीक इंसाफ UC3 माड़ीपुर के 2 उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। फारान सरदार एडवोकेट का कहना है कि मुर्तज़ा वहाब जिला केमाड़ी से बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं। बल्दियाती कानून के मुताबिक उम्मीदवार के लिए मुतल्लिका कौंसिल का रजिस्टर्ड वोटर होना लाजमी है। इस्तता है कि मुर्तज़ा वहाब के जिला केमाड़ी से ज़मनी इलेक्शन के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह को दुबई का गोल्डन वीजा मिल गया, जिस पर फास्ट बॉलर ने खुशी का इजहार करते हुए दुबई को अपना दूसरा घर करार दिया। नसीम शाह की जानिब से गोल्डन वीजा मिलने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा गया कि बड़े एजाज की बात है कि उस मुल्क का गोल्डन वीजा मिल गया जिसको अपना दूसरा घर समझता हूं। फास्ट बॉलर नसीम शाह के अलावा शादाब खान, इफ्तिखार अहमद समेत मुतादिद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दुबई का गोल्डन वीजा मिल चुका है। वाज़ेह रहे कि नसीम शाह कंधे की सर्जरी के बायस पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। दुनिया भर में इसराइली हमलों के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे और रैलियां निकाली गईं। कनाडा के शहर टोरंटो में फलस्तीनियों के हक में इसराइली कौंसलेट तक मार्च किया गया।
जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। इस मौके पर मुजाहिरीन मजलूम फलस्तीनियों के हक में और इसराइली जाहिरियत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दूसरी जानिब ऑस्ट्रिया उर्दन में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गईं। गुज़िश्ता हफ्ते हमास की जानिब से इसराइल पर जवाबी कार्रवाई की गई थी और इसके बाद दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइल ने गाजा पर हमले बंद न किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल नहान लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंचे, जहां लिबनानी हुकाम के साथ हमास और इस्लामी जहाद के नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हिज़्बुल्लाह की तरफ मुमकिन इशारा करते हुए कहा, गाजा की नाकाबंदी और इसराइली जंगी जराइम के नतीजे में नया महाज खुलना मुमकिन हकीकत है। उन्होंने खबरदार किया कि इसराइल ने गाजा पर हमले बंद न किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबले में बारिश की पेशगोई कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा है, अहमदाबाद में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम टाकरे में बारिश के इम्कानात हैं, ताहम इससे मैच में खलल नहीं पड़ेगा। अहमदाबाद शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है और कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि दोनों टीमों के दरमियान मैच में बारिश के 35% इम्कानात हैं। पाक भारत मैच के दौरान स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार तैनात हैं। अहम टाकरे में 1,30,000 से ज्यादा तमाशाइयों की स्टेडियम आमद की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तानी मारूफ सीनियर अदाकारा सादिया इमाम ने दावा किया है कि वो न सिर्फ जिन्नात से बातें करती हैं बल्कि उनके साथ बैठकर टीवी भी देखती हैं। अदाकारा सादिया इमाम ने हाल ही में निजी टीवी के शो में गुफ्तगू करते हुए कहा, वो एक बार मुत्तहदा अरब अमारात शूटिंग के लिए गई थी। इस दौरान जिन्नात ने सुबह सवेरे उन पर हमला कर दिया। वो सो रही थी कि अचानक किसी ने उनकी टांगें पकड़ ली। सादिया इमाम ने कहा कि इस दौरान मुझे मेरे मुर्शद का फोन आया, जिन्होंने मुझसे खैरियत दरियाफ्त की। मैं अपने मुर्शद का फोन आने पर हैरान हुई कि उन्हें कैसे पता चला कि यहाँ क्या हुआ है। सादिया इमाम ने अपने तजर्बात पर बात करते हुए दावा किया, मैं अपने घर जिन्नात से बातें करती हूँ। जब कमरे में बैठी होती हूँ तो किचन से बर्तनों की आवाजें आती हैं। जिन्नात को जोर से आवाज लगाकर कहती हूँ, किचन इस्तेमाल करने पर पाबंदी नहीं, लेकिन उसे गंदा नहीं करना और सफाई का ख्याल रखना है। उन्होंने बताया कि अक्सर औकात जब सुबह सवेरे सोकर उठती हूँ तो किचन में गंदगी नजर आती है। मुलाजिम से पूछने पर जवाब मिलता है कि हमने तो चाय नहीं बनाई, आप इन्हीं से पूछें जिनसे आप बातें करती हैं। सादिया इमाम ने दावा किया कि अक्सर औकात जब मैं टीवी देख रही होती हूँ तो इस दौरान मेरे पास कोई ना कोई आकर बैठ जाता है, जिस पर मैं उन्हें साथ बैठकर टीवी सीरियल देखने की दावत भी देती हूँ। सादिया इमाम ने भी कहा कि क्योंकि मैं जिन्नात से बातें करती हूँ इसलिए कुछ लोग मुझे पागल भी करार देते हैं।